Good morning, students. I am Sapna Gautam, science teacher, Sarvitkari Vidya Mandir Fazilka. So, students, in previous video we have discussed chapter 13, sound, and some topics related sound like properties of sound, like amplitude, which is maximum distance covered by an object in given time, frequency, number of vibrations in a given time, and time period. These are some properties we have discussed in previous videos, and almost all topics we have discussed in previous videos that related to chapter sound. And now today we will discuss how sound is produced in human being and this is also we have discussed that sound is produced in human being by vocal cords. There are two vocal cords I have discussed with you in a previous video that like this vocal cords that present in windpipe in our neck, and when these muscles are loose and tight, then sound is produced by vocal cords in human being. But how, कैसे हमें सुनाई देती है ह्यूमन ईयर में, किस तरह से हम साउंड जो है हमें सुनाई देती है, हमें साउंड जो है कैसे हमारे जो ईयर्स हैं ह्यूमन ईयर वो कैसे अनेबल होते हैं साउंड को सुनने के लिए. लेट डिस्कस अबाउट दिस. ईयर्स कैसे अनेबल होते हैं. तो जो ईयर्स होते हैं इसमें जैसे ही वोकल कॉर्ड्स में हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो होता क्या है कि जो साउंड है वो हमारे ईयर जो होता है उसमें थ्री टाइप के पार्ट्स होते हैं. आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. सबसे पहले साउंड जैसे ही आउटर ईयर में आती है तो देन इट गोज इनटू द मिडल ईयर वेयर a stressed membrane is present like ear drum. ईयर ड्रम कहते हैं उसको. ईयर ड्रम होती है stressed membrane, and when voice goes to the eardrum then sound vibration make the eardrum vibrate. जैसे साउंड की वाइब्रेशन होती है तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशंस. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्हेन वाइब्रेशंस अकर देन साउंड प्रोड्यूस्ड. जब किसी मीडियम में वाइब्रेशन होती है तभी साउंड प्रोड्यूस होती है. इफ देयर इज नो वाइब्रेशन, इफ देयर इज नो मीडियम, देन साउंड इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन दैट केस. सो eardrum sends vibration to the inner ear. Eardrum in the middle ear, present in the middle ear, and when eardrum sends vibration to the inner ear, and from there signal goes to the brain. From there signal goes to the brain, and that's how we hear. इसी तरह से हम सुनते हैं कि पहले आउटर ईयर में साउंड जैसे वाइब्रेशन होती है साउंड आउटर ईयर में आती है, देन मिडल ईयर में ईयर ड्रम स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होती है और जैसे ही व्हेन वाइब्रेशंस अकर इन द ईयर ड्रम देन वाइब्रेशंस गोज टू द इनर ईयर, एंड फ्रॉम देयर vibrations from the inner ear
goes to the brain और हम where then we unable to hear. So this is the main process that we unable to hear any sound. Okay, and properties we have discussed earlier, and now what is meant by shrillness और pitch, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ वैसे, but frequency of sound is depend on shrillness. This is important thing. Frequency depends upon shrillness or pitch. We can say also pitch. Frequency shrillness और pitch पर depend करती है. If there is more frequency, then these objects have high pitched and have high shrilled voice. And if there is low frequency, then we can say they have low pitched sound. Okay, and loudness depend upon amplitude. किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे. If amplitude of vibration is large, then voice is more loud. अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, that's why we can use speakers. हम speakers यूज़ करते हैं in parties, in birthdays और anywhere where loudness हमें कम महसूस होती है. then we have to increase the loudness. that इसीलिए हमें वहाँ स्पीकर यूज़ करने पड़ते हैं ताकि एम्पलीट्यूड जो है उसका बढ़ सके. अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है then loudness is more. if amplitude is less, then loudness is small, less. लाउडनेस भी कम होगी अगर एम्पलीट्यूड कम है. ओके, एंड ये मैंने आपको फैक्टर बताए हैं कि लाउडनेस को हम डेसिबल में डीबी, इसका सिंबल है, इससे डिनोट करते हैं. ये किसकी यूनिट है? लाउडनेस किसी भी आवाज का तेज होना किस पे डिपेंड करता है? उसकी एम्पलीट्यूड पर. और लाउडनेस को किस यूनिट में हम मेजर करते हैं? डेसिबल में. किसमें? डेसिबल एक यूनिट है जिसको डीबी से डिनोट करते हैं और इसको हम लाउडनेस को मेजर करते हैं डेसिबल में. ओके, एंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपको बताई थी हर्ट्ज, एम्पलीट्यूड की मीटर या सेंटीमीटर, टाइम पीरियड की सेकंड होती है. ओके, और ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, नॉइज एंड म्यूजिक. ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स क्या होती हैं? ऑडिबल होती है वो साउंड दैट वी कैन एबल टू हेयर इजीली, एंड द साउंड विच वी कैन नॉट एबल टू हेयर नॉन एज इनऑडिबल साउंड. ऑडिबल साउंड एंड इनऑडिबल साउंड. ऑडिबल साउंड क्या होती है? द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 वाइब्रेशंस. साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज. 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वाइब्रेशंस पर सेकेंड. जितने एक सेकंड में जितनी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, जैसे हमने ये माना ग्लासेस हैं, तो ग्लासेस में हमने इसको वाइब्रेट किया, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको स्ट्रक किया तो ये वाइब्रेट होनी शुरू हो जाती है. इसके अंदर माना वाटर है तो ये स्ट्रक होनी स्टार्ट हो जाती है. तो जितनी बार एक सेकंड में ये वाइब्रेट करेगी तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड नॉन एज वाइब्रेशन, नॉन एज फ्रीक्वेंसी. तो ऑडिबल साउंड क्या होती है? जो साउंड
20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम वाली साउंड को हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। एंड मोर देन 20,000 हर्ट्ज को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड्स। सो ऑडिबल साउंड्स वो होती हैं जो इनके बीच की साउंड्स होती हैं, ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में आती है, उसे हम कहते हैं ऑडिबल साउंड्स, जो हम सुन सकते हैं, विच कैन बी इजीली वी हियर, दैट इज नॉन एज ऑडिबल साउंड्स। मीन्स टू से फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की साउंड्स कैसी साउंड्स हैं? ऑडिबल साउंड्स। स्टूडेंट्स, I have sent you PDF questions from sound chapter. You have to read out this chapter, and audible, inaudible sound I have discussed in this video. We will discuss next topic of this chapter in later. So thanks. Have a nice day.